सालण दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आही दा बालण बालनी बाप सिरा दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां बाप सिरा दे ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां हर चीज बाजारों मुल लब जांदी ते नहीं लभदियां ने मावा माए मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़दा हाल नी माए मैं किन्नू आखां कवे हुसैन फकीर नमाना कवे हुसैन फकीर साईंदा शाह मिलेता हुआ निहालनी माए मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़दा हाली माए मैं किन्नू आखां बाप मरे सिर नंगा मरण कंड खाली बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरे कंड खाली मावा मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली माए मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़दा हाली माए मैं किन्नू माए आजा मुख दिखला जा माए आजा मुख दिखला जा कोई न पुछदा हालनी माए मैं किन्नू आखां माए मैं किन्नू आखां माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ ارشاد ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور والدین وہ ہستی ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے سوا کسی اور کا نام اس طرح سے نہیں لیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ یہ سوال انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا اور تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ والدین کی عظمت کیا ہے اور اس میں بھی ماں کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج عالمہ آن لائن میں گفتگو ہوگی والدین کی عظمت کے حوالے سے، اور اس گفتگو میں جو قابل صد احترام عالمات یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں، اور پھر سلسلہ شروع ہوگا سوال و جواب کا۔ تو میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں عالمہ صباحت رمضان صاحبہ، السلام علیکم، اور آپ کے برابر میں تشریف فرما ہیں محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم۔ میرے بائیں طرف محترمہ نصرت احسان صاحبہ، السلام علیکم نصرت صاحبہ، اور ایک اور عالمہ کا اضافہ ہوا ہے آج ہمارے پروگرام میں، آپ ہیں صفا فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ صبا صاحبہ آپ سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں والدین کی عظمت کیا بیان کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو آج کلام پڑھا گیا ماں کے حوالے سے، بڑا دل میں ایک گداز اور ایک شفقت جو والدین کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی قرآن پاک اور حدیث کی روح سے عظمت جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا وجود جو ہے نا، وہ ہمارے ماں باپ کی بدولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس چیز سے بے نیاز ہے کہ وہ ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کے باوجود انسانوں کو اس نے نیاز مند رکھنے کے لیے، خوبصورت رشتے عطا فرمانے کے لیے، ماں باپ کی عظمت کو بتانے کے لیے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ واہ، بہت خوب۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ یہاں پر جو ہے نا بالعموم کسی مومن کے لیے نہیں کہا، کیونکہ قرآن کریم کل انسانیت کے لیے ہیں، تو ہر ایک کے لیے کہا کہ انسان کو ہم نے نا حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب حسن سلوک میں اتنا کچھ آ جاتا ہے جس میں ہمیں احادیث کریمہ بریف کرتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر میں ماں کی عظمت کے حوالے سے صرف ایک جملہ بڑا خوبصورت کہوں گی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بس یہاں پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ جی ہاں، کہ جو اگر جنت کمانا چاہتے ہو تو والدین سے اچھا سلوک کرو۔ جی ہاں بالکل، اور جنت نہیں کمانی تو پھر جو چاہو کرتے رہو۔ جی ہاں، یہی ہمارا اثاثہ ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، اور ایک انسان چاہتا ہے کہ اسے اچھا سے اچھا بدلہ ملے، تو جنت سے بہتر کیا ہے، اور اس کے قدموں تلے یہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ بہت اچھا آپ نے فرمایا۔ اور کنیز فاطمہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم جو والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا کم سے کم اجر کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سایہ پدر کا سایہ طوبہ سے کم نہیں، مادر کی گود تخت سلیمان سے کم نہیں۔ واہ۔ جو کچھ ماں باپ کے سائے میں انسان حاصل کرتا ہے، اس کا ادراک یا اس کی کمی کا احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو خدا نخواستہ ماں باپ کا سایہ میسر نہ آیا ہو۔ بے شک۔ پروردگار عالم نے ہمیں والدین عطا کر کے ہم پہ وہ احسان عظیم کیا ہے، اور اس کے لیے جو سورہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو اس انداز میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پروردگار میرے والدین پر ایسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ کیا۔ بے شک۔ اور جہاں تک بات رہی اس کی کہ جو کچھ حسن سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں کم سے کم اجر کیا ہے۔ فرانہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ، خواہ وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، عالم نزا کا ہے۔
सकरात का जो आलम है, जब इस जिस्म से रूह को खींचा जाएगा, वो इतना मुश्किल मरहला है कि जिसके लिए जनाब मरियम ने ये कहा कि जब जनाब ईसा ने कहा कि मैं आपको ज़िंदगी दोबारा देने पर कादिर हूँ, परवरदिगार आलम ने मुझे ये मुआवजा अता किया है कि मैं मुर्दों को जिला देता हूँ, आप चाहें तो इस दुनिया में दोबारा आ सकती हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे तुम बेहद अजीज़ हो, लेकिन मैं दोबारा मौत की तकलीफ़ नहीं सह सकती। अल्लाहु अकबर। इतना ख़तरनाक वो वक्त होगा कि जब इस जिस्म से रूह को खींचा जाएगा। और इसके लिए नबी करीम ने ये कहा कि जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, उसका कम से कम अज्र ये है कि उस पर सकरात का आलम अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जब जिस्म से रूह को खींचा जाएगा, वो वक्त परवरदिगार आलम नज़ा का जो वक्त होगा वो आसान फरमा देगा। छोटा सा एक वाक़या बयान कर दूं कि जनाब रसूल खुदा एक शख्स के पास पहुँचे जो आलम नज़ा में था। जब आप उसके पास पहुँचे तो देखा कि बहुत ही जाकनी का आलम है। आपने उससे कहा कि कलमा तैयबा की तिलावत करो। उसकी जो ज़बान थी वो लड़खड़ा गई, वो नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पाया। जनाब रसूल खुदा ने पूछा क्या इसकी माँ नज़दीक है? तो एक खातून सामने आई और उन्होंने कहा मैं इसकी माँ हूँ। कहा क्या इससे नाराज़ हो? कहा हाँ, इससे बहुत दिनों से नाराज़ हूँ, इससे बात नहीं करती। कहा आज इसे माफ़ कर दो, वरना इसकी जिस्म से जान का निकलना आसान नहीं होगा। तो माँ बाप को राज़ी रखना, दुनिया में तो ज़ाहिरी बात है हमें जाने क्या क्या माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिलता है, लेकिन आखिरत भी हमारी इस अम्र से खाली नहीं है कि हम जो कुछ माँ बाप के साथ यहाँ करते हैं उसका बदला हमें वहाँ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बल्कि जो कहा गया ना कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वालिदैन का निभाया हुआ रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है कि जिसका हमें अजर जो है वो दुनिया में ही मिल जाता है, आखिरत में तो खैर मिलेगा। और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो सवाल जो आपका ये सिलसिला जारी रहेगा। Q-Mobile X2 Energy Seal, because the show must go on. ऐ खुदा रोशन जहां, ये जो तेरी सिमत से चली मौज नूर की, हुई पूरी रोशनी की हर। इस रमजान भी अंधेरे मिटाने में हमारा साथ दें। पेप्सी लीटर ऑफ लाइट, आओ रोशनी फैलाएं। अब से बालों को सिर्फ वॉश नहीं करूंगी, उन्हें दूंगी नशोनुमा और मजबूती। बिकॉज न्यू पैंटीन इज मोर देन जस्ट अ शैम्पू। इसमें है ऑयल की ताकत लिए प्रो विटामिन्स जो दे नशोनुमा और मजबूती जड़ों से सिरों तक। बालों को सिर्फ वॉश मत करो, उन्हें बनाओ स्ट्रॉन्गर, थिकर, सिर्फ 14 दिनों में। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इज ब्यूटिफुल। न्यू पैंटीन, नया सबसे बेहतर पैंटीन सिर्फ 5 रुपए की साशे में। बेटा रोजा खोल के जाना। जैसे नेकियों से भरा है माह रमजान, वैसे ही खास गुलाब और बेशकीमत संदल के खालिस अर्कियात से भरा है दर्शी जामे शीरी। नया पैडल पॉप चोको स्ट्रॉबेरी कप, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मजेदार कॉम्बिनेशन, एक्साइटिंग चॉकलेट चिप्स की टॉपिंग्स के साथ। इफ्तार के औकात पेश हैं जैस की जानिब से। वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, सोशलाइजिंग, डाउनलोडिंग, पाकिस्तान के सबसे बड़े और बेहतरीन डेटा नेटवर्क जैस के साथ, जो आपकी सहूलत और जरूरत के मुताबिक लाया। डेली, वीकली और मंथली डेटा बंडल अभी *433*2# मिला। जैस, दुनिया को बता दो। आज रंग है रंग है दिहा, आज रंग है रंग है दिहा, आज रंग है Bonanza Satrangi, Colors of Eid, now in stores.
मैं इस पुल के नीचे इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग नहीं है, पर किसी को पढ़ाने के लिए इन सब की जरूरत भी नहीं होती। जरूरत होती है मेहनत की, अच्छे कल की चाहत की। इस रमजान बनो अच्छाई की मिसाल, क्योंकि अच्छे कल की उम्मीद तुम ही तो हो। अरे खाने में मिर्ची तेज है और आपने बताया नहीं। पता है, बचपन में हमारे घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। बड़ी मेहनत के बाद अगर एक वक्त का खाना मिल जाता तो हम पेट भर के खा लेते थे। हमारे यहाँ खाने की अहमियत थी, इन मिर्च मसालों की नहीं। जैसे जिंदगी में खाने की अहमियत है, वैसे ही खानों में सोया सुप्रीम की अहमियत। तो क्यों ना आज से अपने हर खाने को सेलिब्रेट करें सोया सुप्रीम। Kanza Satrangi, Colors of Eid, now in stores. मम्मा, मैथ्स में स्टार। शाबाश। ये लो चॉकलेट। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पर कैविटीज। हाँ, आपकी फिक्र जायज है। इस तरह के खाने से हो सकती हैं कैविटीज, इसीलिए कोलगेट, इसका प्लस कैल्शियम फॉर्मूला दांतों को रखे मजबूत और कैविटीज से महफूज। ना कैविटीज का डर, ना प्यार में झिझक। कोलगेट, डेंटिस्ट का तजवीज करता नंबर 1 ब्रांड। एवरेस्ट के इतने पास पहुंच गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। क्यों ना किया तो फिर क्या जिया। मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, पूरे घर में घूमता फिरता है, हर चीज मुंह में डाल लेता है, इसीलिए उसका पेट खराब हो जाता है। बच्चे की 80% सेहत का तहफ्फुज उसके पेट से होता है, इसीलिए आपको चाहिए नेस्ले नीडो 1+। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए खास दूध, जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स, जो रखे बेबी के पेट को अंदर से महफूज। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। किन्नौर नूडल्स के मजेदार फ्लेवर्स, चटपटा और चिकन, वही ग्रेट टेस्ट अब नए पैक्स में। आज कोई खास मुलाकात है? आप तो चार्ज हो गए पर आपका फोन नहीं। हेलो, Where are you? हेलो। अब जरा मंजर बदलते हैं। क्यू मोबाइल E1 की क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी से दूसरे मोबाइल्स के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा तेज चार्जिंग होती है। तो अब बुरे वक्त की बैटरी एंड और अच्छा वक्त फुल चार्ज। 10 minutes charge, 200 minutes talk time, 3 GB RAM and 16 GB ROM, 8 MP back and 5 MP front camera. Q Mobile E1. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ गुफ्तगू हो रही है वालिदैन की अज़मत के हवाले से, और मैं सवाल करना चाहूँगी नुसरत एहसान साहिबा आपसे कि वालिदैन के बहुत सारे हुकूक हैं, हम तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि कोई अख्तलाफ भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर एक लड़की शादीशुदा है और उसने अपने वालिदैन को भी सुनना है, अपने शौहर की भी बात सुननी है, लेकिन उनके दरमियान कोई ऐसा अख्तलाफ पैदा हो गया है, तो फिर लड़की के लिए क्या हुक्म है अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरहाना, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत अता की, लेकिन जब हमारे सामने इस्लाम के बहुत सारे अहकाम आते हैं तो हम सिर्फ़ उनको ऊपर से लेने के आदी होते हैं, कभी हम उनकी हिकमतों पे गौर नहीं करते। इस्लाम हमें हर वो हुक्म देता है जो हमारी ज़िंदगी में एतदाल और बैलेंस कायम रखता है। सही। अब अगर एक खातून जो शादीशुदा है उसके सामने एक ऐसा मरहला आ जाए कि शोहर की फरमाबरदारी और माँ बाप की फरमाबरदारी, इन दोनों के दरमियान यानी तनाज़ा आ गया कि तो वो किसको तरजीह दे। यहाँ पर देखें, बीवी के लिए हुक्म है, औरत के लिए हुक्म है कि वो शोहर की फरमाबरदारी करेगी, मर्द के लिए हुक्म है कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करेगा। सही। इसलिए कि औरत पर शादी के बाद सबसे ज़्यादा हक़ उसके शोहर का होता है, और मर्द पर शादी से पहले भी और शादी के बाद भी सबसे ज़्यादा हक़ उसके वालिदैन का होता है। सही। जब हम यहाँ देखें तो यहाँ एक बैलेंस कायम रहता है, एक एतदाल होता है। हम सिर्फ एतराज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी हिकमत पर गौर करें तो इसमें बड़ा लतीफ़ नुक्ता निकलता है। जैसा कि बारगाह ज़माने अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स बीमार था, तो उसकी बेटी उसको देखने के लिए इजाज़त चाहती थी, शोहर इजाज़त नहीं देता था।
बार बार अर्ज की गई, मना कर दिया गया, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो फरमाया गया कि इस औरत की अपने शोहर की फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ने इसके वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हर शख्स ये चाहता है कि उसके वालिदैन बख्शे जाएं बेशक उसके जिस अमल से। तो यहाँ पर बीवी के शोहर की फरमाबरदारी की वजह से उसके वालिद की बख्शिश हो गई। यहाँ मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि न सिर्फ ये कि यहाँ वो अपने शोहर की फरमाबरदारी को तरजीह दें, इसी तरह जब उनके सामने ऐसा मरहला आ जाए कि जहाँ पर शोहर के वालिदैन की फरमाबरदारी की बात हो तो उनको चाहिए कि वो अपने शोहर की आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि फरमाया कि मतलब वालिदैन जो हैं वो जन्नत के दरवाज़ों में से दरवाज़ा है। लिहाजा बीवी को चाहिए वो अपने शोहर को तरगीब दे कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे, क्योंकि यहाँ भी एक मरहला आता है ना, बीवी कहती है मेरी मानो, वालिदैन की मत मानो। तो यहाँ देखें कि उसके शोहर की जो आखिरत है वो उसके वालिदैन की फरमाबरदारी में पोशीदा है। लिहाजा एक नेक खातून, एक अच्छी औरत, इस्लाम की उम्दा खातून जो अपने शोहर की आखिरत की फ़िक्र करती है, उसके लिए जन्नत का सामान करती है, तो वो अपने शोहर को तरगीब दिलाएगी कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे। बहुत खूबसूरत बात की आपने, क्योंकि अगर ये बात हम तमाम ख़वातीन समझ लें तो फिर मेरा ख्याल है कि जो झगड़े घरों में होते हैं सास और बहू के, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी सफ़ा फातिमा साहिबा, आज प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई हैं, आपका शुक्रिया। अगर हम वालिदैन की कोई भी नाफरमानी करता है तो उसकी सज़ा फिर क्या है? देखिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शुक्र बजा लाओ मेरा और अपने वालिदैन का। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाई और अपने शुक्र के साथ वालिदैन के शुक्र को ज़िक्र फरमाया, तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर ये नुक्ता निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का अपने शुक्र के साथ वालिदैन के शुक्र का ज़िक्र फरमाना यकीनन इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि वालिदैन को नाराज़ करना ये अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को उभारने का सबब बनता है। आजकल हम अपने माशरे में देखते हैं जा बजा इस किस्म की ख़बरें हमें सुनाई देती हैं कि वालिदैन को कत्ल कर दिया गया या माअज़ अल्लाह घर से निकाल दिया गया। तो ये यकीनन इस तरफ ले जाना आवाम को, ये बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस मुबारका, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत करीमा से दूर होने का नतीजा है। वरना अगर अहादीस करीमा का मुताला किया जाए तो सरकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से सबसे ज़्यादा कबीरा गुनाह, यानी जो सबसे ज़्यादा सख्त कबीरा है, वो ना बताऊं? और ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई और आखिर में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका जवाब देते हुए ये बात बयान फरमाई कि अल इशराकु बिल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करना, व उक़ूक़ुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें, यानी कबीरा गुनाहों में जो सबसे ज़्यादा अखबस, सबसे ज़्यादा खबीस तरीन हैं, सबसे ज़्यादा सख्त हैं, वो 2 चीज़ें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। इसके साथ ही एक और हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ करना चाहूँगी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह इस हाल में करता है कि वो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हो तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और वो शख्स जो सुबह इस हाल में करता है कि वो अपने वालिदैन का नाफरमान हो तो उसके लिए जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक और हदीस पाक मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँगी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मलऊन, यानी वो शख्स मलऊन है मन अक्का वालिदैही, यानी जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की। तो यहाँ पर मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि इस्लाम हमें ओल्ड हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं देता। इस्लाम हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि वालिदैन को उफ तक नहीं कहना है। कुरान करीम ने बयान फरमाया कि अगर बुढ़ापे की हालत में वालिदैन को पाओ तो उफ तक ना कहो, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वालिदैन को उनकी ये जो उफ तक कहना है, यानी उनको तकलीफ से बचाना है। तो किसी भी किस्म की कोई यहाँ तक फरमाया गया कि अगर काफिर हैं तब भी उनकी खिदमत बजा लाओ। अदना से अदना जो तकलीफ है उससे भी पहले ही कुरान करीम ने रोक दिया ताकि इस तक नौबत ना आए। आखिर में सिर्फ एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि उलमा ने वालिदैन की नाफरमानी करने वाले के लिए अफसकुल फासिकीन, यानी फासिकों में, यानी जो बदतरीन लोग हैं उनमें सबसे बदतर करार दिया है
اور عذاب نار کا حقدار قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت شکریہ. میں ایک سوال پہ جلدی سے اور کرنا چاہوں گی, وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس ہوتا ہے. صباح صاحبہ مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ والدین کے حقوق ہیں کیا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو والدین کی عزت, ان سے محبت, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا, تو ان کی فرما برداری کی جائے, ان کو فالو کیا جائے, کیونکہ وہ آپ کی تربیت کے لیے ماں زمین کی طرح ہیں, باپ آسمان کی طرح ہیں. تو یہ کیفیت اسی طرح ہے, تو ان کی نافرمانی سے بچا جائے, ان کی فرما برداری اختیار کی جائے, اور بڑھاپے میں اگر ان کو پائے تو ان کی خدمت کرے, اور ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق رکھے, اور ان کی مغفرت کی دعا کرے, اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرتا رہے. اس سے بہترین کوئی اور اسلام کا فرحانہ ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین پر خرچ کرے, اور یہ کہ اگر وہ اس کے اوپر سختی کریں تو ان کی سختی کو برداشت کرے, اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرے. وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ کبھی ان کے آگے نہ چلو اور ان سے پہلے نہ بیٹھو. یہ ادب کی باتیں ہیں, اور ان کا نام لے کے نہ پکارو. بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں, لیکن ان کو مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہیں تو بہت چھوٹی باتیں, لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے. تو یقیناً ہمیں ان تمام باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ والدین کا ادب جو ہے وہ سب سے اہم ہے, اور جس نے والدین کا ادب کیا, ان کی خدمت کی, اس نے دنیا بھی پالی اور اس نے آخرت بھی پالی. تو یقیناً ہمیں اپنے والدین کا ہر طرح سے احترام کرنا ہے. آج کا سیگمنٹ انہی سوال و جواب کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید موضوعات پہ گفتگو جاری رہے گی. اور ہم جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ خواتین جن کے دلوں میں کوئی سوال ہے اور وہ کچھ جاننا چاہتی ہیں, پوچھنا چاہتی ہیں, ہماری عالمات یہاں موجود ہیں, ضرور سوال کریں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آڈینس سے بھی ہم سوالات لیتے رہیں گے. آج کا بس سیگمنٹ یہیں تک, ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے. اللہ حافظ.